Hello and welcome to WeLearn Network. This is session number 4 of subject Biology, and today we are going to cover the chapter Kingdoms, Plantae and Animalia. The topics that we are going to cover in this session are main divisions of Kingdom Plantae, Bryophytas, Petridophyta, Gymnosperm, Angiosperm, Kingdom Animalia, classification of animals, major phyla included in Kingdom Animalia, phylum Chordata, classification of phylum Chordata. Main division of Kingdom Plantae is our first topic. Now, Kingdom Plantae are classified as follows. The first one is known as bryophytes, which are the amphibian plants of the plant kingdom, and these are non-vascular. Means in these plants there are no vascular tissues present. The second one is Petridophytas. These are the plants with true roots, stems, leaves, vascular tissues present. And the third ones are Spermatophytas, and these trees and these plants are seed producing vascular tissue plants. Bryophytes does not have vascular tissue. Petridophytes have vascular tissue but they do not have seed. But Spermatophytas have seeds and have vascular tissues. Now first we will talk about bryophytes. Bryophytes are the amphibians of plant kingdom, as they are completely their complete life cycle in both above the water and below the water level. They mainly grow in dams, shady places. There are three main types of bryophytes. The first are flat, ribbon-like liverworts. The second one are small leafy stems. These are known as mosses. And the third one are flat thalloids. These are known as hornworts. ये जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो एम्फीबियंस होते हैं, मतलब कि ये प्लांट्स पानी के ऊपर भी रह सकते हैं और पानी के नीचे भी रह सकते हैं, और ये मेजरली उन जगहों पे पाए जाते हैं जहां पे बहुत ही ज्यादा कीचड़ होता है या फिर डैम्प या शेडी प्लेसेस होते हैं. इनको ब्रायोफाइट्स को हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. पहले ये कैटेगरी है, ये रिबन लाइक होती है, एकदम पतले पतले और एकदम फ्लैट, और इनको हम लिवर रॉट्स कहते हैं. इनका एग्जाम्पल है लिवर रॉट्स. कुछ ऐसे ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनमें बहुत ही छोटी पत्तियां होती हैं, स्टेम्स होती हैं और पत्तियां होती हैं, और इनको हम मॉसेस कहते हैं. और जो थर्ड हमारी कैटेगरी होती है ये फ्लैट थैलॉइड्स होते हैं, जिनका एग्जाम्पल है हॉर्न रॉट्स. Petridophytes again comes into category of plant kingdom. A fern plant is a petridophyte. Ferns are lower vascular plants and they contain vascular tissue. The main plant body represents a sporophytic generation and has roots which penetrates the soil and absorbs water. These are the plant bodies which have vascular tissue, has roots. They absorb their food from soil and they absorb their water from again roots. But these vascular plants or these petridophytes does not have seeds. They only germinate through spores. The spores germinate into independent small thallus-like bodies and the gametophytes called prothallus. इनका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पेट्रोइडोफाइट्स का होता है फर्न प्लांट्स. Now this is an example of a fern plant. Every fern plant has roots, they have stem and they have leaves. And these leaves and roots go down deep the soil and they can absorb water and minerals from the soil. Now we have also some plants with having seed properties, and these are known as gymnosperms. Gymnosperms are those plants which have naked seed, और जिनको हम naked ovule कहते हैं, on the flat scale leaves called ovuliferous scales not enclosed in carpels.
जिम्नोस्पर्म वो प्लांट होते हैं जिनके सीड्स नेकेड होते हैं, उनके सीड पे कोई आउटर कवरिंग नहीं होती। द अडल्ट प्लांट इज टॉल, वुडी, पेरेनियल ट्री और श्रब, मोस्टली एवरग्रीन। ये जो हमारे प्लांट होते हैं, जो जिम्नोस्पर्म होते हैं, ये बहुत ही, जो अडल्ट प्लांट होते हैं इसमें, ये बहुत ही ज्यादा टॉल होते हैं और बहुत ही ज्यादा वुडी होते हैं। और ये जो ट्री होते हैं इनमें श्रब्स भी होती हैं, और मोस्टली ये जो श्रब्स होती हैं ये हमेशा एवरग्रीन रहती हैं। लीव्स में भी डायमॉर्फिक और ऑफ वन काइंड ओनली। इनमें जो लीव्स होती हैं वो दो तरीके की लीव्स भी हो सकती है या फिर एक तरीके की लीव्स भी हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यू के बंडल्स होते हैं वो स्टेम में होते हैं और ये अरेंज होते हैं इन अ रिंग पैटर्न, और ये शो करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ को। मतलब कि जितने ज्यादा ये रिंग्स बढ़ते जाएंगे उतनी ही ज्यादा हमारी ट्री की लेंथ बढ़ती जाएगी। वेस्कुलर बंडल्स इन स्टेम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग एंड शो सेकेंडरी growth. These gymnosperm bear cones which are usually unisexual. ये जो जिम्नोस्पर्म होते हैं ये एक ही तरीके के सेक्स को रिप्रेजेंट करते हैं एंड मोस्टली दीज आर यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स हमारे वो प्लांट्स होते हैं जो हमारे सीड्स को कवर करके रखते हैं। जिम्नोस्पर्म्स, a typical flowering plant, are most familiar plants like pea, mango, coconut, wheat and rice comes under the group of angiosperm because their seeds are enclosed in a covering and that seed are again enclosed by the fruit, and a fruit is a mature ovary. जब हमारे एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं तो एंजियोस्पर्म्स वो प्लांट होते हैं जिनमें फ्रूट्स लगते हैं और हर फ्रूट के अंदर सीड होते हैं। द एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स और क्लासेस। द फर्स्ट आर नोन एज डाइकोटिलेडन्स एंड सेकेंड वन इज नोन एज मोनोकोटिलेडन्स। जो डाइकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनमें दो सीड्स होते हैं, मतलब कि जब हम उनके सीड को देखते हैं तो हम उनके सीड को दो पार्ट में आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पी, जब हम पी के आउटर कवरिंग को हटा के देखते हैं तब उसमें दो पार्ट्स होते हैं, बट जो मोनोकोटिलेडन प्लांट्स होते हैं उनमें सिर्फ एक ही सीड होता है और हम उस सीड को दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। किंगडम एनिमेलिया। This kingdom includes animals which shows a wide variety, yet some have common features. Few general features of kingdom Animalia are, the first thing is, ये जो जितने भी सारे animals होते हैं वो multicellular eukaryotes होते हैं. They have ingestive heterotrophic nutrition, मतलब कि ये अपना फूड खुद नहीं बना सकते, किसी दूसरे पे निर्भर होते हैं अपने फूड के लिए. They have power of locomotion. ये जो एनिमल्स होते हैं इनके पास में पावर होती है कि ये अपने आप को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकें. They also show increased sensitivity through nervous system. और इन एनिमल्स के पास में नर्वस सिस्टम होता है, कंप्लीट नर्वस सिस्टम, जिनसे इनकी सेंसिटिविटी और बढ़ जाती है. क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स. नाउ एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज एन ऑर्गेनिज्म, हमारी जो बॉडी होती है वो बहुत सारे तरीके के फीचर्स शो करती है. हमारी बॉडी में सिमेट्री होती है, हमारी बॉडी की एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है, हमारी बॉडी में कैविटीज होती हैं, और देयर आर मेनी एम्ब्रियोनिक सेल्स लेयर विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी, एंड देयर आर ऑल्सो नोटोकॉर्ड्स. स्पेशल फीचर नोटोकॉर्ड जो कि प्रेजेंट होता है कुछ एनिमल्स में और कुछ एनिमल्स में वो एब्सेंट होता है. और इन्हीं कैटेगरीज पे डिपेंड करके हमने एनिमल्स को और भी बहुत ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है. और वो ब्रॉड कैटेगरीज हमारी होती हैं पैराजोआ, यूमेटाजोआ, फाइलम पोरिफेरा, फाइलम साइंड्रिया एंड ऑल अदर फाइलास. और ये जो फाइलास होते हैं, दीज फाइलास डिपेंड्स कि हमारे अंदर बॉडी कैविटी है, हमारी बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, हमारी बॉडी की सिमेट्री कैसी है, और हमारी बॉडी में नोटोकॉर्ड्स हैं या नहीं है.
तो जब हम एनिमल कैटेगरी को सब डिवाइड करते हैं तो वी गॉट टू काइंड ऑफ सब किंगडम्स, दीज आर नोन एज पैराजोआ एंड ह्यूमेटोजोआ। जो पैराजोआ होते हैं इनमें कोई सिमेट्री नहीं होती एंड दीज डोंट हैव आल्सो टिश्यूज, देयर आर नो टिश्यूज विच वी कैन फाउंड इन पैराजोआ। बट इन ह्यूमेटोजोआ हमारे सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स हमारे पाए जाते हैं और इनमें टिश्यूज भी होते हैं और टिश्यूज से हमारे पास में ऑर्गन्स भी होते हैं। जो हमारे पास में फाइलम पॉरीफेरा होता है, इस तरीके के एनिमल्स में टिश्यूज होते हैं और ये टिश्यूज ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एक पर्टिकुलर सिस्टम में। ये जो पॉरीफेरा होते हैं इनमें एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं दो, दैट इज व्हाई दीज आर नोन एज डायप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। पर ये जो हमारे साइंड्रिया होते हैं, ये जो साइंड्रिया होते हैं दीज आर अरेंज्ड इन ऑर्गेनिक सिस्टम होता है यहां पे, और हमारे पास में 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं इन आर साइंड्रियाज। सो देयर इज काइंड ऑफ अ डिस्टिंग्विश बिटवीन पॉरीफेरास, साइंड्रियाज एंड अदर फाइलास। तो जो हमारे पॉरीफेरास होते हैं ये एसिमेट्रिकल होते हैं, हमारे सिंड्रिया जो होते हैं वो रेडियल सिमेट्री के होते हैं, मतलब कि ये थोड़े गोल होते हैं, और जो हमारे अदर फाइलास होते हैं वो हमारे बाइलेटरल सिमेट्री को फॉलो करते हैं। मेजर फाइला इंक्लूडेड इन किंगडम एनिमेलियाज आर, फर्स्ट पॉरीफेरा जो फाइलम होता है इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक होते हैं दैट इनकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा पोर्स होते हैं, कैनल्स होती हैं और चेंबर्स होते हैं जिनके थ्रू वाटर अपने आप को फ्लो करवा पाता है। इट्स जस्ट लाइक आवर कैनल सिस्टम। लार्ज अपर्चर होता है जिसको हम ऑसिक्यूलम कहते हैं, जो अपर एंड ऑफ द बॉडी में होती है। बॉडी को एनक्लोज किया जाता है एक लार्ज कैविटी से जिसको हम स्पॉन्जोकॉइल कहते हैं, और इनमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता और कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता या फिर अपेंडेजेस भी हमारे पास में नहीं होते हमारे पॉरीफेरास में। जो फाइलम सेंड्रिया होता है ये इंक्लूड करता है हाइड्रोइड्स को, जेलीफिशेस को, सी अमोनियम्स को और कॉरल्स को। द मेन बॉडी फंक्शंस आर बॉडी विद नो हेड एंड नो सेगमेंटेशन। हमारी इस सेंड्रिया में कोई भी बॉडी में हेड नहीं होता और ना ही कोई प्रॉपर सेगमेंटेशन होती है। बॉडी वॉल्स आर 2 लेयर, दैट इज आर नोन एज एक्सटर्नल एपिडर्मिस एंड इनर गैस्ट्रोडर्मिस। इट्स लाइक जेलीफिश। नॉन सेल्यूलर मेसोगोएलिया जो होते हैं वो इन बिटवीन होते हैं, वो साइंड्रिया और पॉरीफेरास के बीच में आते हैं। साइनोडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और हेल्प करते हैं इनके ऑर्गेनिजम्स को कैच करने में या प्रे को कैच करने में। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टिंगिंग सेल्स, जो इनमें एक कांटा होता है और ये कांटा किसी भी दूसरे कार्निवोरस को हेल्प करता है कि वो अपने फूड को कैच कर सके। नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम प्लेटीहेलमिन्थस। प्लेटीहेलमिन्थस आर, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल है फ्लैट वर्म्स। इनका बॉडी का मेन स्ट्रक्चर होता है कि इनकी बॉडी एलोंगेटेड होती है, सॉफ्ट होती है। डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड वर्म्स जो होते हैं हमारे, वो भी हमारी इस कैटेगरी में आते हैं। विदाउट ट्रू सेगमेंटेशन, अगेन इनकी बॉडी में कोई अच्छी सेगमेंटेशन नहीं होती, लाइक अर्थ वर्म्स। इनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं होती। दे हैव सकर्स और हुक्स, सकर्स लाइक लीचेस। लीचेस जो होती हैं वो भी हमारी इसी कैटेगरी में आती है। ये जो सकर्स या जो हुक्स होते हैं ये इनको हेल्प करते हैं कि ये किसी भी होस्ट बॉडी से ब्लड को सक कर सके या इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशंस को सक कर सके या किसी दूसरी बॉडी से अपने आप को अटैच करके रख सके। दे आर मोस्टली ऑर्गेनाइज्ड इन सेक्सेस, यूजुअली यूनाइटेड, एंड मोस्टली इनकी जो रिप्रोडक्शन स्ट्रेटेजी होती है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बट ये कभी कभार एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। The other phylum is phylum Aschelminthis. इनकी क्लास जो होती है ये क्लास होती है नेमेटोडा, एंड these are kind of roundworms and threadworms. इनकी बेसिक बॉडी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि these are elongated cylindrical body, these are round shaped.
बॉडी कैविटी होती है इन फॉर्म ऑफ सूडोकोलियम विच इज अगेन नोन एज फॉल्स बॉडी. एलिमेंट्री कैनाल ओपन रहती है दोनों एंड से फ्रॉम बिकॉज दीज हैव अ माउथ एंड अ एनस, एंड दीज आर सेक्स सेपरेटेड बिकॉज ये जो हमारी कैटेगरी होती है इनमें मेल्स भी होते हैं और फीमेल्स भी होते हैं, बट जो मेल्स होते हैं वो फीमेल्स से छोटे होते हैं, फीमेल्स बड़ी होती हैं. Phylum Annelida include earthworms. Again, these are having elongated bodies. Segmented bodies होती हैं और collimated होती हैं, मतलब कि इनमें body cavities होती हैं. And these are worm-like animals. बॉडी प्रोवाइड करती है इनको लोकोमोशन की पावर, मतलब कि दे कैन गो फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद द हेल्प ऑफ सेटे और पैरापोडिया. पैरापोडिया इज अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहां पे वो रेंग के चलते हैं. वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और अगेन एलिमेंट्री कैनाल दोनों तरफ से ओपन होती है. दैट इज दे हैव अ माउथ एंड दे हैव अ एनस, और इनके पास में एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं नेम्फ्रीटा. सेक्सेस यूनाइटेड भी हो सकते हैं और सेपरेट भी हो सकते हैं, मतलब कि मेल और फीमेल सेपरेट भी हो सकते हैं और एक ही बॉडी के अंदर मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है. नेक्स्ट फाइलम इज फाइलम एंथ्रोपोडा. These Anthropoda has segmented bodies, मतलब कि हम इनकी बॉडीज में डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि हाँ these are eyes, these are legs, these are hands. Segmented body होती है and this segmented body can be differentiated from a head, from thorax and from the abdomen. Head and thorax often fused होते हैं कभी कभार, जिनको हम कहते हैं cephalothorax. जैसे कि आपने देखा होगा क्रैब्स में, क्रैब्स के पास में हेड और जो बॉडी होती है थॉरेक्स जो होता है वो आपस में इंटरमिक्स्ड होता है. दैट इज व्हाई क्रैब्स आर नोन एज सेफलोथोरेक्स. जॉइंट लेग्स होती हैं फॉर लोकोमोशन, इनकी बॉडी से ही लेग्स अटैच्ड होती हैं. वन पेयर ईच ऑन सम और ऑल बॉडी सेगमेंट्स. सेक्सेस यूजुअली सेपरेटेड होते हैं इनटू मेल्स एंड फीमेल्स, मतलब कि मेल्स अलग होते हैं और फीमेल्स अलग होती हैं. और इनके एग्जांपल्स है क्रैब, स्कॉर्पियन, इंसेक्ट्स एंड स्पाइडर्स. फाइलम मोलुस्का. मोलुस्का जो फाइलम्स होते हैं, these are very sticky, slimy. They have body and they have shells on their body. These animals have a soft, unsegmented body with a hard carrious cells to protect the soft body, with a hard carcaneous shell to protect the soft body. They have a muscular foot to help locomotion and also to act as a weapon in some cases. इनके examples हैं snails, slugs, oysters, mussels, clams, squids and octopuses. Next phylum is phylum Echinodermata. Echinodermata includes starfishes, brittle stars, sea urchins and sea cucumbers. Main characters of these bodies are, these are marine animals, मतलब कि they live in salty waters. इनकी बॉडी जो होती है वो अनसेगमेंटेड होती है और इनमें हेड पार्ट नहीं होता. बॉडी सरफेस जो होती है वो मार्क्ड होती है विद रेडियंट 5 रेडिएंटिंग एरियाज. हम इनकी बॉडी को 5 हिस्सों में अलग कर सकते हैं. रेडियल सिमेट्री होती है इनके पास में और एंडोस्केलेटन होते हैं, मतलब कि दे डोंट हैव एज काइंड ऑफ स्केलेटन, दे डोंट हैव स्पाइन्स ऑफ डर्मल calcarean oscillars and with spines. They can move again. They have power of locomotion, and with the power of locomotion they can move with the help of tube feet. Now we have phylum Chordatas. Phylum Chordatas has a special characteristic which is known as notochords. Notochords present होते हैं कुछ लाइफ्स में, but these notochords are in some cases replaced by backbone. Dorsal tuberal nerve cord होती है हमारे पास में एक, जो कि nerve cord मतलब कि this makes a particular animal more sensitive towards the stimuli.
गिल स्लिट्स होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, और सम केसेस में लार्वल या अडल्ट स्टेजेस में हमें गिल्स मिलते हैं, बट इन सम केसेस वो डिसअपियर हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल फ्रॉग्स में गिल्स बाद लार्वल स्टेज पे होते हैं, बट इन अडल्ट स्टेज गिल्स डिसअपियर हो जाते हैं. बॉडी विद अ हेड एंड ट्रंक एंड 2 पेयर्स ऑफ अपेंडेजेस. हमारी जो बॉडी होती है, इस केस में बॉडी हेड होता है और एक ट्रंक होता है, जिनमें 2 अपेंडेजेस होती है जिनकी हेल्प से वो मूव करते हैं. नाउ this phylum Chordata is again divided into subphylums, and these subphylums are known as Urochordata, Cephalochordata and Vertebrata. ये जो chordata होते हैं, यूरोकॉर्डाटा, नोटोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं ओनली इन लार्वल स्टेज, मतलब कि नोटोकॉर्ड्स होते हैं पर वो लार्वल स्टेज तक ही रहते हैं. बॉडी बैग शेप होती है, ट्यूनिक कवर होता है, और अडल्ट स्टेजेस में हमारे पास में टेस्टास भी आते हैं. लिम्ब्स एब्सेंट होते हैं इसमें, मतलब कि दे डोंट हैव एनी आर्म और लेग. डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड होती है जो कि इनको लार्वल फॉर्म से अडल्ट फॉर्म में रिड्यूस करने में हेल्प करती है. नोटोकॉर्ड्स इन सेफलोकॉर्डाटास, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट रहती है थ्रू आउट द लाइफ प्रेजेंट रहती है. बॉडी एलोंगेटेड होती है और फ्लैटेंड होती है फ्रॉम बोथ द साइड्स. लिम्ब के जो होते हैं या तो पेयर्स में होते हैं या फिर वो एब्सेंट होते हैं. डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है अडल्ट्स में. इन सब फाइलम वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड रिप्लेस कर दी जाती है वर्बल कॉलम से, जिसको हम बैकबोन कहते हैं. इनमें बैकबोन प्रेजेंट होती है. बॉडी विद वेल डेवलप्ड हेड एंड पेयर्ड लिम्स होते हैं हमारे पास में, और बोनी एंडोस्केलेटन होता है, मतलब कि दिस हैव बोन्स, वर्टिब्रेटास हैव बोन्स विच शोज देयर एंडोस्केलेटन. इनके पास में पेयर लिम्ब होते हैं, मतलब कि दे हैव 2 legs एंड 2 hands. डॉर्सल ट्यूबरल नर्व कॉर्ड होती है जो कि पूरे ब्रेन को डिवाइड करती है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को डिवाइड करती है. The subphylum Vertebrata has 2 superclasses, Agant jawless vertebrata and Ganostoformata, जिनमें jawed vertebrate होते हैं, मतलब कि they are again vertebrata are divided into 2 categories, jawless vertebrates and jawed vertebrates. Now these are some questions which you have to do by yourself. The first one is list the main groups of kingdom Plantae. Give 2 main types of bryophytes. Differentiate between gamophytes and sporophytes. And the fourth one is list the 3 main characters of phylum Chordata. Thank you and have a nice day.